everyone. Here we are going to talk about our B.Ed first year's teaching subject, that is teaching of English. Our today's topic is about teaching of poetry related to methodology, that how we can teach poetry. You know, in previous lecture we had already done our topic teaching of poetry related to definitions of poetry and objectives. There are two types of objective, general objectives and specific objective of teaching English. Teaching poetry. Now we will discuss about the methodology. Methodology means how we can teach a poem at different levels according to the mental level of the students, according to the class of students. Today we will discuss about methodology. Methodology meaning method to teach a poem. There are different type of methods to teach a poem according to the class, according to the level of the students. At primary level it is different method, and at senior classes and at जो senior secondary level है या फिर university classes है वहाँ पे क्या है, एक different level है to teach poetry. तो we discuss about here we go discuss about different type of method. Let's go, we start with our first method. हम अपने जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट मेथड है उससे स्टार्ट करेंगे. हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है सॉन्ग मेथड. सॉन्ग मेथड. Song means you can say it is related to musical or rhythmic portion of the poems. You know, in the primary classes, या फिर you can at the starting level, we have to teach poem with musical, proper rhythm, proper stress level, proper pitch, tone and जो song method है ये म्यूजिक से रिलेटेड है. तो ये जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस होते हैं, जो एट द स्टार्टिंग पॉइंट टीचर हैव टू यूज दिस मेथड टू टीच पोएम टू स्टूडेंट्स. बच्चों को जब भी पढ़ाना है आपने प्राइमरी लेवल पर, तो सबसे ये सूटेबल मेथड है, सूटेबल मेथड सॉन्ग मेथड है. द चिल्ड्रन आर नेचुरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. बच्चे जो नेचुरली एक म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, so the poem can be taught to them with rhythm. In this method, greater interest is paid to enjoyment than to assimilation of the material. जो मेन यहाँ पे मोटिव रहेगा वो टीचर्स की जो इंजॉयमेंट का है, जो टीचर्स है बच्चे को कैसे इंजॉय करवा सकते हैं स्टडी को अकॉर्डिंग टू द एज इन प्राइमरी क्लासेस, या फिर हम कह सकते हैं इन केजी क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास. तो इन दिस क्लासेस में ना बेस्ट मेथड ये माना जाता है कि इट इज अज्यूम्ड दैट सॉन्ग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू टीच द पोएम टू स्टूडेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस to enjoy the students. According to the mental ability of the students, they can create interest to learn a poem. तो एक जो एक अच्छा इंटरेस्ट है वहाँ पे एक जो अच्छा environment create हो सकता है with the help of song method. Second one is action method. Action method. Some poems are based on the action. वो actions पर based होती हैं. With the help of actions, the people can understand easily the meaning of the poem. Because in primary level, the students होते हैं, they can't understand each and every word with the help of explanation, with the help of meaning, but they can understand each and every word's meaning with the help of action. For example, अगर हम बात करते हैं कि हम उसको बच्चों को जो है पोएम सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो एक एक्शन है, जो मूवमेंट है वहाँ पे
वो क्रिएट करनी पड़ती है टीचर्स को लेकर। सम पोएम्स आर मेंट फॉर एक्शन एंड दे शुड बी टॉट इन अ वारी वे। हर एक पोएम के अकॉर्डिंग वो एक्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक्शंस की डिमांड होती है पोएम को, उसी तरीके के जो एक्शन हैं टीचर को करने पड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ एक्शन टीचर कैन टीच इजीली टू द स्टूडेंट्स। For that purpose, a teacher who loves action would be a great help, because यहाँ पे actions हैं वो मैच करने पड़ते हैं सब्जेक्ट मैटर से, पोएम के सब्जेक्ट मैटर से। आगे हम बात करेंगे थर्ड जो इसका मेथड आता है वो आता है मीनिंग मेथड। मीनिंग मेथड मीन्स टीचर हैव टू एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग। डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसके जो मीनिंग है वो टीचर को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं इन द मीनिंग मेथड में। इन दिस मेथड एट फर्स्ट द पोएम इज रीड विद द राइम एंड रिदम। प्रॉपर रिदम में जो पोएम है पढ़ी जाएगी और उसके बाद क्या होगा, देन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर एक्सप्रेस बाय द टीचर। जो टीचर पॉइंट्स को पढ़ रहा है उसके द्वारा जो शब्दों के अर्थ हैं वो बताए जाएंगे। दैट इज मोस्ट हेल्पफुल मेथड टू लेट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स को पोएम का आइडिया का पता चल जाता है, पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका भी पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ मीनिंग मेथड। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड। Explanation method. Explanation method means this method is useful for the जो long poems होती हैं, for the big poems. Teacher explain word meaning and in this method teacher divide the poems in the parts. After that he explain each or every part of the poem. In this method, the cooperation of student is very important and very necessary to make the method successful. Because sometimes क्या होता है जो बड़ी poems होती हैं अगर हम उसको एक एक वर्ड के मीनिंग के द्वारा बात करें तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, या फिर विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग मेथड। इस मेथड से वो बच्चों को समझने में कहीं ना कहीं जो मैटर है वो मिस हो जाता है। बट एक्सप्लेनेशन मेथड में क्या है, जो पॉइंट्स होते हैं उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है, एक एक जो पार्ट्स का फिर जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ईच एंड एवरी जो लाइन होती है, जो सेंटेंस होता है उसको वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड इट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें क्वेश्चन आंसरिंग है वो की जाती है। इन दिस पोएम द पोएम इज डिवाइडेड इनटू small pieces and then teacher asked some question related to this part of poems. Sometimes students can understand this question but sometimes they can't understand this question. After that teacher explain each and every paragraph of the poem. उसके बाद फिर बच्चों से जो क्वेश्चनिंग है वो की जाती है। इसके जो एनालिटिकल मेथड है इसमें बच्चे पोएम्स को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। दिस मेथड डिस्ट्रॉय द एंजॉयमेंट ऑफ पोएम बट इट हेल्प द अंडरस्टैंड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कैन बी अ ग्रामेटिकल रूल्स। तो इसमें बच्चे को जो वर्ड मीनिंग का पता चलता है, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसका भी पता चल जाता है, बिकॉज हियर द पोएम इज डिवाइडेड इन स्मॉल पीसेस। आगे हम बात करते हैं डिस्कोर्स मेथड। जो हमारा 6th नंबर है वो है डिस्कोर्स मेथड। डिस्कोर्स मेथड क्या होता है? इन डिस्कोर्स मेथड द स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स कनेक्टेड विद द मैटर ऑफ पोएम are explained and some light is thrown upon the style of poem.
पोएम का स्टाइल, दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम। सो इसमें जो स्टाइल है पोएम का, किस स्टाइल में जो पोएम है वो वहाँ बच्चों को बताई जाती है। द मेथड इज हेल्पफुल एट द सेकेंडरी स्टेजेस बिकॉज दिस कोर्स मेथड में जब स्टाइल ऑफ पोएम आ गया, स्टाइल ऑफ जो पोएट आ जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइमरी क्लासेस। तो ये जो डिस्कोर्स मेथड है वो कहाँ पे जो ज्यादा हेल्पफुल है वो है एट सेकेंडरी क्लासेस के लिए, या फिर सेकेंडरी लेवल के लिए। सेवंथ हमारा जो पॉइंट है वो आता है एप्रिशिएटिव मेथड। एप्रिशिएटिव मेथड, दिस इज ऑल्सो suitable for the higher classes या फिर university students. It is helpful at the university level. In this method, the poem is studied with an eye upon language, ideas, imagination and instinct जो इसकी beauty है. The teacher takes for granted that the students are aware the principles of criticism. इसमें जो स्टूडेंट्स के आइडियाज है, जो पोएम में आइडियाज लिखे गए हैं, जो पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो क्रिटिकल स्टडी हम कह सकते हैं वो भी बच्चों द्वारा करवाई जाती है। दे कैन एनालाइज द व्यूज ऑफ अ पोएट। सो दिस इज सूटेबल फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंपैरेटिव मेथड। 8th हमारा पॉइंट है कंपैरेटिव मेथड। Comparative method is also suitable for higher classes, that mean that universities level, university level पर जो comparative method है वो करवाया जाता है। Comparative method में क्या होता है? In order to explain the ideas and teacher has to quote example and जो skill of the teacher demands the selection of suitable and instructive quotations. Often the poems are compared keeping the construction, writers and the material in view. This requires thorough knowledge, so it is suitable for the university stages या it is suitable for the university classes. इसमें जो poem construction की बात आ जाती है, जो poet के ideas की बात आ जाती है, यहाँ पे राइटर्स के जो व्यूज होते हैं, जो पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है, उसका जो एनालाइज किया जाता है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स की नॉलेज बहुत मायने रखती है। तो यहाँ नॉलेज की जो जरूरत है वो पड़ती है ताकि हम व्यूज को जो एनालाइज कर सकें। सो इट इज सुटेबल फॉर द यूनिवर्सिटी क्लासेस। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड टू टीच अ पोएम्स। तो ये तो थी मेथड्स की बात। इफ वी यूज दीज मेथड तो टीचर हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। इफ द टीचर use song method, in this song method there are steps only. So now we discuss about the steps which is followed by the teacher, जो टीचर के द्वारा स्टेप फॉलो किए जाते हैं for each and every method for teaching of a poem. So here we will discuss about steps. ये मेथड्स की बात की थी। नाउ हम बात करते हैं स्टेप्स। द स्टेप्स विच इज रिक्वायर्ड टू टीच अ पोएम। स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग अ पोएम। कौन कौन से स्टेप किया? स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। जो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है? फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले राइट एज ए प्रोज। प्रोज की तरह फर्स्ट स्टेप में क्या है? इंट्रोडक्शन का स्टेप आता है जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पोएम को, पोएम के बारे में, कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, किस पोएम किस जो कवि के द्वारा लिखी हुई है, हु इज द पोएट ऑफ ए पोएम, स्टाइल ऑफ अ पोएम। तो ये सारे क्या है? सबसे पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन होती है, हम इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं। द टीचर टेल्स समथिंग अबाउट द पोएम।
introduction part. The teacher tells something about the poem, tells something about the poet, and something tells about the style of poem if it's necessary. अगर उसकी जरूरत है तो स्टाइल ऑफ पोएम भी बता दिया जाएगा. इफ इट इज नॉट नेसेसरी देन टीचर कैन स्किप दिस पार्ट. तो उसका जो फायदा क्या होता है, बच्चों को जो है थोड़ा उनके बारे में आइडिया हो जाता है. He may show a chart or a picture related to the poem, which help us to create an environment in the classroom for learning about the poem. जो एक लर्निंग करने के लिए, एक पोएम को लर्न करने के लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है अगर टीचर द्वारा जो एक पार्ट चार्ट या फिर पिक्चर शो की जाएगी और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट किया जाएगा. आगे हम बात करते हैं स्टेप 2 की बात आती है. मॉडल रीडिंग बाय द teacher. It is very important step for teaching poetry. Here the teacher have to present a model reading because the student always imitate the teachers. A teacher have to model reading with correct pronunciation, with correct stress level, with proper intonation. If there is necessary for the actions, then teacher have to some actions to explain the poem in better way. तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो पोएम है बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आ रही तो सम एक्शंस की वहाँ पे जरूरत पड़ती है. तो टीचर वहाँ पे एक्शन भी करता है ताकि जो बच्चों को पोएम है वो आसानी से समझ आ सके. It may be used if the teacher feels necessity. अगर टीचर को लगता है कि ये जरूरी है तो वहाँ पे जो एक्शन है वो यूज किए जाते हैं. थर्ड पॉइंट आता है deals with the difficult language items. After model reading, teacher deal with the difficult language item that can be difficult words, difficult sentence structure, any idiom, any phrase. तो वहाँ पे स्टूडेंट जब नहीं समझ पाते डायरेक्टली उस चीज को, टीचर डील्स दिस डिफिकल्ट या टीचर एक्सप्लेन दिस डिफिकल्ट वर्ड प्रॉपर एग्जांपल्स या फिर प्रॉपर एक्शंस so that student can understand each and every word या each and every sentence meaning because it helps to active participation of the student at that time. In doing so, teacher takes a words and their meaning in simple English. वो बच्चों को एक सिंपल इंग्लिश में उसके जो वर्ड मीनिंग है वो बता सकता है. आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोएम. हम एक पोएम के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक सिंगल मॉडल रीडिंग इज नॉट इनफ. वहां पे जो है एक दोबारा से जो मॉडल रीडिंग है वो करने की जरूरत पड़ती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वंस अगेन मॉडल रीडिंग और रिसाइटेशन. दोबारा से टीचर द्वारा एक जो मॉडल रीडिंग है वो की जाएगी. In prose, it is enough a one model reading, but in poem it's not enough only single model reading. It can twice or thrice. ये 2 बार या 3 बार हो सकती है. Once again model reading or recitation by the teacher to explain clearly meaning of the poem, so that the students can learn each and everything. Or especially if we talk about pronunciation.
if we talk about stress level, rhythm of the poem, because the enjoyment of a poem is depend on the musical portion, rhythmic portion. जितना हम poem को rhythm के साथ, जितना म्यूजिक के साथ उसको बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा जो बच्चे उसको enjoy कर सकते हैं. So that model reading is very important for a poem. आगे हम बात करते हैं after model reading. Teacher will say the students to the students for the reading. It can be a loud reading. Loud reading हो सकती है. टीचर के द्वारा जो है वो क्या कहा जाएगा, जो स्टूडेंट को रिसाइटेशन के लिए कहा जाएगा. टीचर ask the students to recite the poem. टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को पोएम रिसाइट करने के लिए, पोएम जो बोलने के लिए कहा जाएगा. प्रॉपर रिदम, प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर जो एक इसका इंटोनेशन है उसके साथ, प्रॉपर एक प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चों द्वारा जो पोएम है वो रिसाइट करवाई जाएगी, रीड करवाई जाएगी. इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन और स्टेप लेवल और रिदमिक पोर्शन, then at that time teacher can remove these problems. Teacher can help to tackle these problems about pronunciation, about stress level or rhythmic portion of a poem. So teachers have to create a situation for the learners, for the student to learn the poem. तो रिसाइटेशन जब होता है तो जो टीचर स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे टीचर द्वारा वो सॉल्व कर दी जाएगी. नेक्स्ट है आगे, टीचर पुट्स फ्यू कंप्रीहेंशन टेस्ट क्वेश्चंस. पुट सम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन to the students. कंप्रीहेंड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाएगा टीचर के द्वारा. किस लिए? सो दैट टीचर कैन नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द पोएम. स्टूडेंट्स ने उस पोएम में से क्या समझा, कितना उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उस बारे में पता चल सकता है. ऑल एफर्ट आर मेड टू गेट appropriate answer from the student. Some hints or guidelines may be provided by the teacher. कुछ जो गाइडलाइंस है टीचर द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सकती है. आगे हम बात करते हैं इसका लास्ट एंड जो फाइनल स्टेप, 7th पॉइंट की बात करेंगे. लास्टली द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू सम असाइनमेंट्स एट होम. तो यहाँ पे होमवर्क की बात आती है. लास्टली जो बात आती है दैट इज अबाउट होमवर्क. टीचर द्वारा जो होमवर्क दिया जा सकता है, सम जो असाइनमेंट है वो दिए जा सकते हैं टू वर्क एट होम. अपने जो होम पर बच्चों को वर्क कर सकते हैं. इट मे बी लर्निंग ऑफ द पोएम बाय हार्ट और राइटिंग द समरी ऑफ द पोएम इन सिंपल इंग्लिश. सिंपल इंग्लिश मीन्स कि देखो जो पोएम्स लिखी होती है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अलग होता है जो एक सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उससे. तो टीचर कैन आस्क टू राइट दीज पोएम्स इन सिंपल इंग्लिश, या फिर हम कह सकते हैं इन सिंपल sentences. This is homework about the teaching of a poem. तो जब बच्चे उसको सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में, दैट हम आइडिया लगा सकते हैं कि उन बच्चों को जो पोएम है वो समझ आ गई. टीचिंग ऑफ पोएम इज एन आर्ट. एवरी टीचर ऑफ इंग्लिश कैन नॉट जस्टिस टू द जस्टिस ऑफ टीचिंग अ पोएम. प्रॉपर एटमोस्फेयर नीड बी क्रिएटेड टू टीच अ पोएम प्रॉपरली. The teacher who can recite well is able to succeed in teaching poetry. Tape recorder with the recorder poem can surely help the teacher practicing poem recitation is needed on the part of English teachers.
जितना हम अच्छा रिसाइट कर सकते हैं, जितना हम अच्छा रिदम में बोल सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इंजॉय कर सकते हैं टीचिंग ऑफ पोएम को लेकर। किसी भी पोएम को लर्न करने के लिए, किसी भी पोएम को टीच करने के लिए जब हमें प्रॉपर रिदम का पता होता है, प्रॉपर हमें पिच का पता होता है, तो वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा हम इंजॉय से उसको टीच कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा इंजॉय से बच्चे उस पोएम को लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज टॉपिक अबाउट द टीचिंग ऑफ पोएट्री। नाउ our topic is completed. In previous lecture we done about definitions and objectives. In this lecture we complete about the methodology of teaching of poetry. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।